जिन्ने भी तुसी इत्थे जगह ते आए हो या जिन्ने भी इस दुनिया ते ने, मसीह कौम दी, मसीह धर्म दी, मसीह लोकां दी गल नहीं मैं कर रही, जिन्ने भी लोग ने, ऑल नेशन, ऑल, हर एक बंदा, हर एक इंसान, हर एक जन ਇਹ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਉਹਦੀ ਦਰਖਾਸਤ, ਉਹਦੀ ਦੁਹਾਈ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਮੰਗਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਏ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਦੁਹਾਈ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ? ਫॉर एग्जांपल ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਆ, ਲੋਨ ਲੈਣਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸਾਡੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੈਂਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਲੋਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਮਾਉਂਟ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵਿਅਰਥ ਹੈ? ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ, ਜੋ ਵੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸੁਣ ਲੈ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ? ਇਹ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚਿਆ? ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤਦ ਤੱਕ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਦਿਨ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰ ਦਿਨ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਆਸ ਨੂੰ, ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰਥੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਦਲੇ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ। प्लीज बच्चों को कंट्रोल करो, मेरी रिक्वेस्ट है, हमसे रिक्वेस्ट है कि क्योंकि एक गंभीर समय सो प्लीज तुम इधर ध्यान बनाई रखो, कोई गल नहीं, बच्चे नादान है। तो जेकर ਅਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਮੀਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਨਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਕਿਉਂ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। खुदा ते ਇਹ ਵਾਅਦੇ ਨੇ, खुदा ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਵਾਅਦਾ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। खुदा ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਅਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਾਣਾਂਗੇ, ਸਮਝਾਂਗੇ, ਔਰ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੋ ਧਾਰੀ ਤਲਵਾਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ। ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਸੇਜ ਪਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਫਸਟ ਜੋ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਉਹਦਾ ਫਸਟ ਚੈਪਟਰ ਆ, ਉਹਦਾ 1 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਮੈਂ 5ਵੀਂ ਆਇਤ ਪੜਾਂਗੀ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜਾ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਦਿਨੀ
अबिया दे वारी वालियां विचों यकरिया करके एक जाजक सी अते ओदी पत्नी हारून दियां धीआं विचों सी और ओदा नाम सी अलिशबत। ए वाक्या है जिहड़ा ये सारे मेरे भैन भरा जिहड़े बाइबल पढ़ने वाले समझ सकते हैं कि यूहन्ना दा जदों जन्म होना सी उस टाइम दे वाक्य नूं बयान किया गया किवें होया। सो जिहड़ा यहूदिया दा राजा हेरोदेस सीगा ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ खुदा ਦਾ पैगाम बयान करदा है कि उस टाइम ते एक हुकूमत ऑलरेडी राज कर रही सी, हेरोदेस दा राज चल रहा सीगा। लेकिन जदों उस राजे नूं पता लगा उन्हां जोतषियां ने जाके जो उन्होंने देखिया सी दर्शन कि इस संसार दे विच एक मुक्तिदाता एक निजात दहिंदा बादशाह पैदा होने वाला है ते ओह हेरोदेस कोल गए और राजे कोल गए। उन्होंने पूछा राजे हेरोदेस नूं कि जो इस जगत दे विच जो राजकुमार पैदा होने वाला है ओनू पूछेंगे। देखो बड़ी अजीब गल है, ज्योतिषी समझ रखते हैं लेकिन वो भी कुछ हद तक उन्होंने दर्शन होया पता लगा लेकिन वो इस भेद नूं नहीं समझ पाए। उन्होंने समझा राजे ने या जन्म लेना तो राजे के घर ही पैदा हो सकता है। हालेलुया। हेरोदेस एक बादशाह सी, एक राजा सीगा। उन्होंने उन्होंने जाके पूछा कि जिहड़ा बादशाह जो इस दुनिया ते जो मुक्तिदाता पैदा होने वाला है वो कित्थे है, क्योंकि असीं ये दर्शन देखा। लेकिन जदों हेरोदेस नूं ये गल पता लगी उहदे मन दे अंदर एक खौफ आ गया, क्योंकि ऑलरेडी जो कौन बंदा चाहेगा यार कि मेरे राज दे विच कुछ दूजा एंट्री मारे, कौन चाहेगा। तो वह लिखा पूरे यरूशलेम थने घबराया। तुसीं वचन नूं पढ़ोगे ना वो लिखा घबरा गया और उन्होंने क्या फिर जोशियां नूं कि ठीक है तुसीं जाओ ते पता करो कित्थे पैदा होया, मैं ही उहनूं सजना करांगा जाके। लेकिन उहदे मन विच कुछ होर सीगी, वो तुसीं बाइबल चों जान सकदे हो। तो जिहड़ा ये वक्त सीगा ये यहूदिया दे राजा जो हेरोदेस दा सीगा वो दौर बहुत ज्यादा भयानक सीगा, क्योंकि जदों हेरोदेस नूं पता लगा कि इत्थे एक मुक्तिदाता एक राजकुमार एक बादशाह पैदा होने वाला है ते उहने पूरे इलाके विच ढिंडोरा पिटाया। कोई भी बच्चा फिर मां दी कुख विच नहीं रहा, वो सारी मां दी कुख नहीं मां दी गोद विच नहीं रहा। वो सारे लीडरां नूं सारे इलाके नूं खबर दी गई कि जिहड़ा बच्चा 1 तो 2 साल छोटी उम्र दा है वो मार दिता जाए। कितना भयानक समय है। जदों यीशु दा जन्म होना सी ते यूहन्ना दा जन्म होना सी, क्योंकि यूहन्ना 6 महीने यीशु मसीह दे नालों उम्र दे विच बड़े ने। सो ये वो वाक्या आ हेरोदेस दे दिनां दा जदों ये घटना वापरी। सो असीं उत्थे लिखा कि यकरिया करके एक जाजक सी और ओदी पत्नी हारून दी धीआं विचों सी और ओदा नाम सी अलिशबत। हुण यकरिया जिहड़ा वा वो जाजक है, वो परमेश्वर दा खादम है जो परमेश्वर ने चुनिया होया जाजकाई दे काम दे लई। जाजक दे विषय च बहुत सारियां गल्लां ते बहुत सारियां, लेकिन समा इजाजत नहीं दिंदा। मैं हर जगह तो स्क्रिप्चर नहीं पढ़ावांगी। अगर तुसीं चाह वालो तो तुसीं इब्रानियां दी पत्रियां दे विचों और कुछ दी किताब दे विचों जाजकाई दे कमां दे विषय च पढ़ सकदे हो। तो एक जाजक सीगा जिहदा नाम यकरिया सी और ओदी जो पत्नी सी वो हारून दियां धीआं विचों सी। बड़ी खास गल है हारून दियां धीआं, ओदी जिहड़ी आइडेंटिफिकेशन है ओदी जिहड़ी पहचान है कि वो कित्थों बिलोंग करदी है, वो हारून दियां धीआं। हुण समझण दी कोशिश करांगे हारून कौन है। चलो तुसीं परमेश्वर दे कलाम दे विचों पढ़ोगे कूच दी किताब च जां इब्रानियां दी पत्री दे विच हारून सीगा जो जाजक सीगा जिन्हों परमेश्वर ने ओनू और ओदे पुत्रां नूं और जगवाती ते जिथे भेंटां दित्तियां जांदियां सी मुकर्रर कीता सी कि ओ खुदा दी खिदमत विच खड़े रहन और जगवेदियां नूं सवारन। ओ जाजकाई ओ जो खुदा दी खिदमत सी ओ हारून नूं परमेश्वर ने बुलाया सी, ओ किसी इंसान दे द्वारा मखसूस कीता होया नहीं सी। जाजक एक जाजक दी धी एक जाजक दे घर विआही जानी, सिंपल जी गल। जाजक दी धी लिखा हारून दियां धीआं विचों। हारून पुराने नेम दे विच शुरुआत दे विच इहदा जिक्र है और ये जिक्र नवे नेम दा आ। पुराना नवे बिना नहीं, नवा पुराने बिना नहीं। ओहदा पिछोकड़ जिहड़ा आ ओ तुसीं देखो कित्थों करके ओनू रिप्रेजेंट कीता जा रहा कि उन्हां विचों सी, ओ हारून दियां धीआं विचों सी जो जाजक जिन्हों परमेश्वर ने अपने हजूर विच खिदमत दे लई चुन लिया सी। और एक जाजक दी धी दूसरे जाजक दे घर विच ओदी पत्नी बनी है।
ठीक है। सो हुण एक बड़ी खास गल है, हुण ये दोनों पति पत्नी होने का रिजल्ट की है, साडे लिए नमूना की है, साडे लिए सिख की है, मत की है, समझने की कोशिश करो। वो भी जाचकाई दे विचों आई है, वो भी अपने घराने के रीति रिवाजां नूं जानदी है कि एक जाजक दी धी दा होना किवें दा हुंदा है ते ओदे किवें दे फर्ज हुंदे ने, वो सारे रीति रस्मां रिवाजां नूं वो जानदी है। अज बहुत सारे पंजाबी लोग है ना, जो कोई धी विआही जाती है तो नौंदे ने, मापे नूं नौंदे ने, तेरे मापे ने तेनूं आ सिखाया, तेनूं आ सिखाया, तेनूं अकल नहीं सिखाई। लेकिन वो हारून दी धीआं विचों ने, और जाजक दी धी है और एक जाजक दे घर विच विआही है। और मैं एक गल दसना चाहांगी, और दोनों ही उन्हां दा खुदा भी एक है, उन्हां दा कुर्बा भी एक है, और उन्हां दा मकसद भी एक है। कई बार खुदा एक हुंदा है, कुर्बा एक हुंदा है, लेकिन मकसद एक नहीं हुंदा। तुहानूं पता ब्याह तो बाद गवाहियां क्यों बदल जांदियां ने? की आम लोग पंजाबी कहते हैं, हुण गल पाया तो बचाउणा ही पैना। समझ गल बड़ी रमच वाली है, बड़ी गहरी है। क्यों ढोल बजाने पैंदे ने? क्योंकि साडियां सोचां मेल नहीं खांदियां, साडे विचार मेल नहीं खांदे। जिस मकसद लई सानू परमेश्वर ने जोड़िया, साडी वो समझ नहीं हैगा। क्योंकि खुदा दे कलाम च जो तुसीं उत्पत्ति किताब पढ़ोगे, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰਚਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਦਮੀ ਵਾਂਗੂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪਤਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਪਤਨੀ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ, लेकिन पहले जो लफ्ज है वो सहायकण आया, मददगार आया। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पति पत्नी इस तरह है, मानो एक साइकिल के दो पहिए, मैं इमेजिन करके देखो, एक साइकिल के दो पहिया ने समान, ठीक है। और वो साइकिल के सफर तुसी तय करना है, पति पत्नी। मैं समझ, फॉर एग्जांपल एक साइकिल के दो पहिए, एक पति है और एक पत्नी है। अगर वो एक पहिया पूरा परफेक्ट है और दूसरे की हवा निकली है, कि वो जो सफर लंबा सफर तय करना वो तय हो जाएगा? और रोंदे पिटदे फिर एवें गले गलाना जिवें करना, सफर तय करना, वो तो फिर एवें खुशी नाल नहीं होएगा। लेकिन जब दोनों ही परफेक्ट होंगे तो सफर सुहाना हो जाएगा। इसी तरह मेरा जो मेन मकसद है कि वो जाजक दी धी है और जाजक दे घर विच विआही है, और उन्हां दा खुदा भी एक है, उन्हां दा कुड़बा भी एक है। कुड़बा मतलब कि वो मसीह घराने दे विचों जिवें खुदा ने हुक्म दिता है कि जदों तुसीं अपने लिए लाइफ पार्टनर दी चोण करनी है तो मेरे कुणबे और मेरे लोकां दे विचों होवे। क्यों होवे? ए सोचो क्यों खुदा ने किया? वो तुहाडे लिए, तुहानूं पता लगा, फिर तुहाडे बयान नहीं बदलणगे कि यार दुआ कदा करा लिया, ठीक है। पंजाबी है, लैंग्वेज भी इदां दी है, लेकिन मैं तुहानूं दसना चाहुंदी खुदा दे कलाम च उन्हां दा खुदा भी एक सी, उन्हां दा कुड़बा भी एक सी, और उन्हां दा मकसद भी एक सी। और उस मकसद दा फल की सी, उस मकसद दा अंजाम की सी? 6वीं आयत विच लिखिया, वो दोवें परमेश्वर दे अगे धर्मी सन और प्रभु दे सारे हुक्मां अते विधां ते निर्दोष चलदे सन। हुण इत्थे एक किरदार नहीं है, उत्थे दो किरदार आ गए, दोवें। और वो गवाही है खुदा भर रहा है, इंसान नहीं। खुदा दा कलाम बयान कर रहा है, गवाही हो जो कोई दूजा भरे, हामी हो कोई दूजा भरे कि हाँ भाई मेरी पत्नी बड़ी परफेक्ट है, मेरा पति बड़ा परफेक्ट है। एक दूजे की गवाही आपस में नहीं मेल खाती, तुहाडी हामी कोई दूसरा भरे। इत्थे ते खुदा दा कलाम बयान कर रहा कि वो दोवें ही धर्मी सीगे, परमेश्वर दी विधियां ते निर्दोष, और ठीक है सारे हुक्मां नूं मनदे सी, सारे, कोई एक नहीं कि ऐ मान लिया दूजा कोई गल नहीं, लिखा सारे हुक्म। और असीं बीते दिनां विच परमेश्वर दे दास लोकां दे द्वारा जाणिया है। अब बीते दिनां च मीटिंग होई सी, इत्थे सिस्टर भी आए सी नगर चर्च तो, और असीं ऑनलाइन मीटिंग भी देखी सी, जिहदे विच निचोड़ है बाइबल दा कि पुराने नेम दे विच जो हुक्म है वो 1150 वारी आया वा, और जिहड़ा नवे नेम दे विच वो आया वा 613 वारी, और जिहड़ा कुल है ओदा टोटल जिहड़ा वा नंबर है वो 1663 वारी इस बाइबल दे विच इह जिक्र आया वा कि इह हुक्म दी पालना करो। तो
इमेजिन करके देखो, क्योंकि खुदा दा वचन च कोई हेरा फेरी कोई वल फरेब नहीं है। लिखा सारे हुक्मां नूं मनदे सी, सारे हुक्मां नूं पालदे सी। तो 1663 हुक्म सीगे जेड़े ਅਸੀਂ अपने 10 लोगों को सीखे है, वो सारे हुक्मां दी पालना करते सी। और पालना करते नहीं सी, फिर पालना करते करते निर्दोष भी सी, दोष तो रहत भी सीगे, कोई दोष नहीं सीगा। बड़ा औखा काम है। सानू पता है कि साडा यीशु ने दोष किवें ठहराया। ਉਹਦੀ ਕ੍ਰੂਸੀਫਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇजिन कर सकते हो, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਕਿਲ ਠੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, और दुआ करके जा रहे हैं कि खुदा मैनू माफ कर दे, क्यों जो ये नहीं जानते कि की कर रहे हैं। हालेलुया। इमेजिन करके देखो, निर्दोष ठहरे, किवें निर्दोष ठहरे। ता करके खुदा दा कलाम कहता दोष ना लगाओ ताकि तुहाडे ते दोष ना लगाया जाए। और पति पत्नी दोनों ही निर्दोष हैं, एक नहीं दोनों ही निर्दोष हैं। और मैं तो एक कुछ फील करवाना चाहती हूँ, जो कल मैं फील कर रही थी तो मैं कंट्रोल तो बाहर सी। हुण देखो अगली लाइन असीं पढ़ांगे, ओदी जेही अगली आयत लिखा कि उन्हां दे औलाद ना सी। ठीक है, समझने की कोशिश करो, धर्मी भी नहीं, सॉरी कल मैं भुल गई, जेड़ा धर्म है मसीह कोई धर्म नहीं है, मसीह कोई जात कोई मजहब कोई है नहीं है, मसीह एक रिश्ता है। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 25 ਆਇਤ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਬਰਾਹਿਮ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਵਚਨ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਮ ਗਿਣੀ ਗਈ। ਮਸੀਹ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜੀ ਲੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। उन्होंने दसो कि धर्म की है। खुदा के हुक्मां की पालना करन नूं धर्म कहा गया, ना कि मसीह विच आउण वाले नूं धर्मी कहा गया। जेड़ा साडे विचों हर एक बंदा धर्मी तां ही अखवाएगा जेकर ओदी हुक्मां की पालना करेगा। एवें नहीं कि असीं मसीह हो गए जी असीं धर्मी है जी, नहीं। खुदा नूं कलाम नूं पुछो कि वो तुहानूं धर्मी ठहराउंदा है। ओदे हुक्मां की पालना करन नूं धर्मी कहा गया। कुछ दी 6 दी 25 आयत विच लिखिया गया। लिखिया हम समझने की कोशिश करेंगे। हुण परफेक्ट ने खुदा दा पैगाम उन्हां दी गवाही भर रहा है कि वो हुक्म भी सारे मानते हैं और विधियां ते भी चलते हैं और निर्दोष भी ने, पर उन्हां दे औलाद नहीं सी। हुण असीं किन्ने क धर्मी है ते असीं किन्ने क विधियां ते चलदे हैं ते असीं किन्ने क परफेक्ट है, इस सानूं जज दी लोड़ है। पर उन्हां दी औलाद नहीं सी। आज लोग पता की कहते हैं, बस मेरी पूरी हो जाए, मैं रब नूं ग्रहण कर लिया, मैं मान लिया, बस आज मैं खुदा नूं स्वीकार किया, अगले दिन बहाल हो जाए, बस हर काम च मेरी फतेह हो जाए, हर गल च मेरी फतेह हो जाए। लेकिन मेरे अजीजों इस चैप्टर नूं जदों पढ़ोगे अगे लिखा वो दोवें बे औलाद सी, क्योंकि अलीशबत बाज सी और दोवें बड़ी उम्र दे सन। कारण की सी, वो औरत बाज सीगी, बच्चा ना जन्मने वाली को बाज किया गया, और वो दोवें बड़ी उम्र दे सन। वो पूरी उम्र उन्हां दी खुदा दे हुक्मां नूं, खुदा दी विधियां नूं पूरे करदे गुजर गई, औलाद नहीं मिली। और असी की सोचते, असी कहते हाँ यार मैं तो चर्च भी जाना, मैं तो प्रार्थना भी कराई, आ भी करना, वो भी करना। फिर लोग रब ने तुहानूं की दिता, किस रब की इबादत करते हो, तुहाडे आप दे भले कुछ नहीं। बड़ा औखा है सब्जेक्ट कि आप बे औलाद होके किसी दूसरे लिए दुआ करना कि खुदा इन्हां नूं ब्लेस कर। लेकिन ये लोग वही कर सकते हैं जो दी मोहब्बत नूं, उहदे सच नूं जान चुके। उन्हां नूं कोई गिला नहीं है, उन्हां नूं कोई शिकवा नहीं है कि खुदा असीं तेरे सारे हुक्मां नूं मनदे आ, तेरियां विधियां नूं मनदे आ, तेरे असीं निर्दोष आ, सानूं बे औलाद क्यों रखिया। उन्हां दे मुंह ते उफ नहीं है अपने खुदा दे प्रति, उन्हां दे मन दे अंदर कड़कता नहीं है अपने खुदा दे प्रति, इवन अपने एक दूजे दे प्रति कड़कता नहीं है।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਮੈਰਿਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਰਿਜ ਹੋਣ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜੁੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਆਸਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁਲਹਨ ਬਣ ਕੇ ਗਈ ਹੋਏਗੀ, ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪੈਂਦੇ ਉਹ ਆਸਾਂ ਵਧਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤਰੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭਤੀਜੇ ਭਤੀਜੀਆਂ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਚਾਹਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਹਿਆ। ਜੋ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ मेरा भी एक्सपीरियंस है। मैं एक गल इमेजिन करती हुई हाँ, रमन मेरे जहन च आ रही सी गल, एक गवाही है जिन्होंने असीं सारे चुकी फिरदे हां, कोई एक नहीं चुक रहा। और रमन जिन्हों भी गवाही इत्थे दिंदी आ, ओहदे लफ्ज़ घट ओहदे आंसू ज्यादा हुंदे आ। 4 साल वो बेऔलाद रही, पर उहदे मन दे अंदर आफ्टर मैरिज इच्छा जागी मां दा सुख प्राप्त करने दी कि मैनू खुदा बच्चा दे। सोच के देखो गल, और रोंदी हुंदी ना, वो एहसास हुंदा मैनू समझा रहा सी खुदा की एहसास उस औरत का विआह होगा। कितनी दफा उन्हें अपने मन के अंदर चाहत पैदा की होगी कि मैं भी औलाद वाली बन जावां। कितनी दफा उन्हें चाहया होगा जिवें दूसरिਆਂ ਦੇ आंगन विच फुल खेडते ने खिडाउण दा मन कीता होगा। कितनी बारी उन्हें अपने अरमानां दा गला घुटदे वेख्या होगा, लेकिन उस तक नहीं है खुदा दे सामने कि मैनू खुदा तू क्यों नहीं दिता, क्यों नहीं दिता तू मैनू। कोई रज नहीं है, पूरी उम्र गुजर गई है सारा कुछ करदे आ, उस हजूरी दे विच खिदमत करदे आ, लेकिन कुछ नहीं। मेरे अजीजों, वफादारी ओ है, चाहे तुहानू मिले चाहे ना मिले, फिर भी तुसी खुदा दे प्रति वफादार रहो। हालेलुया। वफादारी ओ नहीं है जो तुसी काम करके बदले च खुदा तुहानू देवे ते ओ तुहाडी वफादारी है। मिले चाहे ना मिले, तुहाडी जान ओदे सन्मुख हाजिर रहे कि खुदा तेरी मर्जी पूरी होवे। ਇਹ है तुहाडी वफादारी। ओ की है जे तुसी मंगिया तुहानू मिल गया ते फिर तुहाडी वफादारी वधदी चली जाए, फिर तुसी खुदा दे कमां दे लई वधदे चले जाओ। तुहाडी वफादारी हो कि मिले चाहे ना मिले खुदा असीं हाजिर हैं। पूरी उम्र गुजर गई, औलाद नहीं मिली, जवाब ते नहीं है कि खुदा क्यों कीता। उस औरत के हालात को इमेजिन करके देखो। हर औरत की इच्छा, हर औरत की ख्वाहिश होती है आफ्टर मैरिज। कितनी दफा उहदे मन के अंदर पति पत्नी जो इकट्ठे होंदे होणगे ते किन्नियां रमजां किन्नियां चाहतां जुड़ियां होणगियां कि साडी जिंदगी दे विच खुदा, पर मुंह तो नहीं कुछ कहना। हालेलुया। खुदा जांच रहा है, निर्दोष क्यों ठहरे? क्योंकि अपने खुदा दे सन्मुख नहीं कह रहे। उन्होंने उम्र गुजार दी लेकिन बेऔलाद रहे, वो हुक्म दे विच बधदे रहे। जो खुदा ने दिता तां भी शुक्र है, नहीं दिता तां भी शुक्र है। हर हालात विच लिखिया ओहदे शुक्रगुजार रहो। ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਚਾਹਿਆ ਸਾਡੀ ਬਦਲੇ ਚ ਆਸਾਂ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਲੈ ਯਾਰ ਮੈਂ ਆ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਕੰਮ ਇਹਦੀ ਨੀਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਆ, ਇਹ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜਾਂਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। सो अगली लाइन असी पढ़ांगे। लिखा ते एहो होया कि जाओ परमेश्वर दी दरगाहे अपनी वारी सिर जाजक दा काम करदा सी। हुण ओदी वारी सी, जाजकाई दी वारी सी, क्योंकि खुदा दे हजूर दे विच कायदे ते कानून ने लिखा। पुराने नेम दे विच भी इबादत दियां विधियां ते कानून सन। पुराने विच भी मतलब नवे च भी है। तो दस्तूर ने, कायदे ने, कानून ने। खुदा दस्तूर तो बिना नहीं, कायदे तो बिना नहीं, कानून दा खुदा आ। तुसी समझने की कोशिश करो, जिहड़ी शरीयत सी ना वो मूसा दे राही आई, लेकिन जिहड़ी किरपा सी वो मसीह दे राही आई। पहला शरीयत आई, कायदे कानून आए, फिर वो किरपा आई।
और ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਾਜਕ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਾ ਬੱਧਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵਾਰੀ ਦਾ ਬੱਧਾ ਸੀ। और जिदों दी वारी थी वो वारी फिर अपनी दरगाहे अपने काम ते हाजिर रहंदा सी और ओदी बैकबोन ओदी औरत सी। समझण दी कोशिश करो, ओ वारी ते सी क्यों सी? ओदी जेड़ी रीढ़ दी हड्डी ओदी औरत सी। क्योंकि साडे पास्टर जी अक्सर पास्टर डाइगो पास्टर जॉनी एक गल असी अक्सर सुनदे आ, अगर उन्हां दी बीवी इजाजत ना दवे तो वो इत्थे नहीं आ सकदी, ओ खुदा दे काम नूं कर नहीं सकदी। जो जो खुदा ने सांझ जोड़ी है ना बड़ी खास है। ये नहीं है कि पति धर्मी है ते पत्नी कुधर्मी है, ये नहीं कि पति निर्दोष है ते पत्नी दोष नाल भरी हुई है। वो लफज दोनों दे नाल जुड़े हुए हैं, वो हर एक काम दोनों दे नाल जुड़िया होया वा। वो जांचकाई दा काम कर पा रहा, वो मुकम्मल है, वो अपनी पोजीशन से है ते ओदी जेड़ी बैकबोन है ओदी वाइफ है जो टाइम ते पहुंचाउंदी है। हालेलुया। ओ नहीं कहती कि छोटो जी ਇਹ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੋ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਆ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਖੁਦਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ, ਉਹ ਖੁਦਾ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਰੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ भी तुसी किसी और नूं ठहरा दो जी, आज जो मेरी जगह कर लेगा मैं फिर कर लूंगा। लेकिन ਇਹਦਾ अंजाम तुसी अगे देखोगे, बरकत बड़ी ਵੱਡੀ है, वारी ते निभाउंदा। सो ਜਦੋਂ ਉਹ अपनी वारी सिर ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ठीक है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੈਲਕਮ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੀ ਕਾਫੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ हर एक की वारियां गतिविधियां ने जो परमेश्वर की दरगाहे आके पूरियां होंदियां ने। ये साडे ते भी वारियां है, वो सिर्फ जकरिया दे लिए नहीं है, साडे लिए भी सिस्टम है। तो फिर ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ कि लिखा ਤਾਂ ਜਾਜਕਾਈ ਦੇ ਦਸਤੂਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਨਾਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਭਈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹੈਕਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਧੂਫ ਦਿਖਾਵੇ। ਉਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਕਾਇਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸਤੂਰ ਸੀ, ਜੋ ਦਸਤੂਰ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਵਾਰੀ ਸੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਸਤੂਰ ਦਾ ਗੁਨਾਹ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, 3 ਸਟੇਜਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਪਹਿਲਾ ਸੀ ਵੇੜਾ, ਦੂਸਰਾ ਸੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ, ਤੀਸਰਾ ਸੀ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ। तो ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੇੜੇ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਅਤੀ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। तो ਇਹ ਵਿਧੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਸਟੇਜਾਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 'ਚ ਪੜੋਗੇ, ਜਾਜਕ ਦੇ ਲਿਖਿਆ ਵਰੇ ਦੇ ਵਰੇ ਉਹ ਭੇਟ ਚੜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਟਰਨ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁਰਾਣੇ ਮਸੀਹ ਹੋਈਏ, ਇਕੱਲੇ ਲਾਇਆ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਜਾਣਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਸਤੂਰ ਕਿਉਂ? ਲੇਕਿਨ ਕਾਇਦੇ ਨੇ, ਵਿਧੀਆਂ ਨੇ। एक कायदा है, इत्थे खुदा दा घर है, पास्टर जॉनी दा घर नहीं है, एक खुदा दा घर है, ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ नहीं है। इत्थे खुदा दे कानून कायदे ने जो अपने दास लोगों के द्वारा साडे लई ठहराए गए ने, उन्हां कायदिਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨੋ और पूरा करो और जो तुसीं डिजर्व करदे हो ਉਹਨੂੰ हासिल करो। क्योंकि हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च ਦੇ ਨਾਲ जुड़ना ਉਹ विजन ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, क्योंकि परमेश्वर ਦੇ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ विजन है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ कि ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਜਾਜਕਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਡਲੀ ਬਣੋ ਤੇ ਉਹ ਬਲੀਦਾਨ ਚੜਾਓ ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬਲੀਦਾਨ ਨਹੀਂ ਚੜਾ ਸਕਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਸੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਲ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਯਿਸੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੜਾਉਣੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਉਣੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਲਿਖਿਆ ਆ ਤਦ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਇੱਕ ਦੂਤ ਧੂਪ ਦੀ ਜਗਵੇਦੀ ਦੇ सज्जे पासे खलोता दिसा ते जकरिया वेख के घबराया और उन्हें डर लगा और दूत ने आख्या कि हे जकरिया ना डर, क्यों जो तेरी बेनती सुनी गई। अरे तेरी प्रार्थना जेडी पत्नी है एलिशबत तेरे लिए एक पुत्र जनेगी और तू ओदा नाम यूहन्ना रखना। समझने की कोशिश करो, जो आ दस्तूर के मुताबिक कायदे
बेनती ਉਹਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਚਾਹਤ ਰੱਖੀ। ਔਰ ਉਹ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿੰਦੀ ਵੀ, ਇੱਕ ਕੰਨਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਚੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੇਰੀ बीवी फलदार हो जाए। और पेट चढ़ा रहा, उस जगह ते पोजीशन ते मौजूद खड़ा है, ते फरिश्ता आया। कई तो खुदा को मंगते ने, फिर कई बार खुदा मजबूर हो जाता है अपने लोगों को देने दे लई। ਉਹਨੇ ਜਾਂਚਿਆ ਸਾਰੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਵਫਾਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਗਿਆਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤਾਬੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗਾ। ਇਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਦੋਂ, ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਜਾਂਚੋ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਜਾਂਚ ਕਰੋ। ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਉਦੋਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ कि जो ख्वाहिश थी हाँ हुण सानू औलाद मिल जाएगी, पर जो नहीं मिली हुण ध्यान ही नहीं, चेता ही चाहे सुनी गई चाहे नहीं सुनी गई। तो फिर असीं 18 लिखा पढ़ांगे जो फरिश्ते ने गल कही थी यकरिया की कहता है। तो यकरिया ने दूत नूं आख्या मैं की कर मन्ना, क्योंकि मैं बुढ़ा हाँ ते मेरी पत्नी बड़ी उम्र दी हो गई है। वो सवाल कर रहा मैं किवें मन्ना, वो सबूत मांग रहा, वो कारण दे रहा मैं बुढ़ा हाँ, मेरी पत्नी बुढ़ी है, ये किवें पॉसिबल हो सकता है। मेरे अजीजों, तुहाडे द्वारा कीती गई बेनती नूं तुसीं भुल सकदे हो, लेकिन खुदा नहीं। खुदा नूं याद है अपने वादे, अपने लोकां दे लई। तुहाडे द्वारा कीती होई बेनती दा उत्तर मिलन देरी लगन ते तुहाडे लई चिंता दा कारण हो सकदी है, लेकिन खुदा दे लई चिंता दा कारण नहीं हो सकदी। वो कहता किवें हो सकता है, प्रूफ मांग रहा मैं की कर मन्ना, क्योंकि मैं बुढ़ा, मेरी औरत बुढ़ी है, मेरी बीवी बुढ़ी है। लेकिन खुदा के कलाम दे विच जो तुसीं इसे आयत पढ़ोगे चैप्टर 37, क्योंकि कोई परमेश्वर दा वचन को, क्योंकि कोई वचन परमेश्वर दी वल्लों शक्ति ही नहीं होवेगा। ओ अपने शरीर नूं देख रहा, अपने आप नूं देख रहा, लेकिन कदी बारी अपने आप नूं देखदे आ नहीं मेरी हैसियत नहीं है कुछ खरीदण दी, मेरी हैसियत नहीं है घर अच्छा बन जाए। यार ये तो उदों वक्त सीगा, पैसा सी, अच्छा मौज नाल जींदे सी, हुण कित्थे हो सकदा, हुण मेरी आस किवें पूरी हो सकदी है, क्योंकि बेनती उन्होंने पति पत्नी ने औलाद लई कीती। बेनती असीं हर एक करदे, किसी ने घर लैण दे लई कीती, किसी ने बाहर जाण दे लई कीती, किसी ने कुछ लैण दे लई कीती, किसी ने कुछ लैण दे लई कीती। बेनतियां असीं सारे करदे, हालेलुया। लेकिन ओदी बेनती ओदी औरत लई सी। खुदा ने वो जवाब दिता कि नहीं, परमेश्वर दे वल्लों कोई भी शब्द शक्तिहीन नहीं है। सारा दी भी सोच सीगी, वो भी मन च हसी मैं तो बुढ़ी हो गई, लेकिन जदों तुसीं अपने शरीर दी वेखोगे, अपनी सोचां दी वेखोगे, तुहाडे लई अनहोणा आ, तुहाडे लई मुश्किल आ। लेकिन जदों तुसीं खुदा दी कुदरत नूं, ओदे वादे नूं देखोगे, ते इब्राहिम नूं जो वादा पूरा होया, वो मोती दे समान सी, और रेत दे जरे और आकाश दे तारियां दे समान ओदे विचों औलाद पैदा होई। वो वादा सीगा खुदा दा। और कुरंथियां दे खाते विच लिखिया है कि ओदे जेड़े सारे ही वादे ने ओ हां ही हां दे विच, कोई भी ओदा वादा ना दे विच नहीं है। तुसीं किवें हासिल करना है? अज जेकर तुसीं भी परमेश्वर दे हजूर विच प्रार्थना करदे आ रहे हो, अजे तक नहीं उत्तर मिलिया, ते इंतजार विच बढ़ो, सबर विच बढ़ो। तुहाडे द्वारा कीती होई प्रार्थना तुहानू भुल सकदी है, तुहानू देरी लग सकदी उत्तर पाउण ते, लेकिन खुदा नू सारा कुछ याद है, वो कोई चीज नहीं भुलिया। सो ये सी अज मेरे लिए भी और तुहाडे लिए भी। जांचो कि मैं जिस मकसद लिए खुदा ने मैनू चढ़िया आ, जिस मकसद लिए मेरे गुनाह निकलिया वा, कि मैं उस मकसद दे विच खड़ा वा, कि मैं अपनी खिदमत दे विच डटिया वा, किते मैं रोसा वाद विवादां च नहीं लगा। ले बस जो नहीं मैं ते आ काम करदा, फिर भी मेरा कोई ना नहीं, फिर भी मेरा कोई ये नहीं है, तुसीं आ के मैं एवें करदा, लेकिन नहीं। बेशक पास्टर जोनी ना समझन कौन, लेकिन खुदा जानता है, लेकिन वो खुदा दा खादम तुहानू गलत नहीं करेगा, क्योंकि वो जिस सच्चे दे विचों तुहानू लुकाना चाहता, तुहानू औखा हो रहा है, लेकिन वो सच्ची च तड़के दे कि लगे यीशु भी आज्ञाकार बनया, दुख चलिया, और वो परमेश्वर दे सज्जे हाथ विराजमान है। जो खुदा जो जिहदी पातशाही अटल है, वो जज क्या तुहाडा, की तुहानू अपनी पिछोकड़ याद है, वो हारून दियां धीआं विचों की तुसीं
ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਔਲਾਦ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਕ ਪਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਧੀਆਂ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ। ਜੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਰਾਸਤ ਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਅਨਾਗਿਆਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਪਿਓ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਬੜੇ ਉਦੋਂ ਬੇਦਖਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੇਦਖਲ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੈ। ਨਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਦੋਂ ਗਈ ਔਰ ਉਹ ਸੁਣੀ ਕਦੋਂ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅਣਚਾਹੀ ਅਣਹੋਣੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਲਈ। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।